لیکن کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے جس سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ کے پیشانی میں جو امنگ اور جوش ہے، آپ کے چہرے میں جو اطمینان کی لکیریں ہیں، اور آپ کے آنکھوں میں جو اعتماد ہے، مجھے اس بات پر اعتماد ہونے لگا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب ہماری فتح کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور یقین ہے اس میں ہماری کوششوں سے زیادہ آپ کے اخلاص کا دخل ہے، چونکہ آپ نے خلوص کی بنیاد پر برادری کے رشتے ناطے کو توڑ کر ہمیں عدل کی بنیاد پر ووٹ دیا ہے۔ آپ نے وہ عدل کیا ہے، آپ نے اس حصول پسندی کا ثبوت دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسمبلی میں نے امور کا نام جس طرح سے اٹھایا ہے، یقیناً لوگ کہتے ہیں کہ امور کے نام کو روشن کرنے میں اختر الایمان نے بڑا رول ادا کیا۔ آج بھلے ہی امور غریب ہو، امور پھٹا حال ہو، سڑکوں سے محروم ہو، لیکن یہاں کے سڑک، یہاں کے پل اور سرکار کی ناانصافی کے خلاف جس انداز سے ہم نے اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے، اب کسی مائی کا لال نہیں ہے جو ہماری ترقی کی راہوں میں رکاوٹ پیدا کر سکے، اور اس کا سب سے بڑا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ ابھی کھاری اور رسیلی کے پل کو ہم نے کیبنٹ تک پہنچا دیا ہے، اور جو برسوں میں کسی نے نہیں سوچا تھا، وزیروں نے نہیں سوچا تھا، اور بہت سارے لوگ کہتے تھے، گونگے لوگ، کیا اختر الایمان خلیف بولو کروا کی پاوے، لیکن آج بولے نہیں گیا، ارے میں لوگ چاہت بولو خلیف یا کچھ کروا مدد تھوڑے لگی بولے نہیں بات۔ اچھا ایک نٹیا گیا تھا ہنچاؤ درگاہوں سے میشا بنائے بنڈال آزاد اچھا لکھا پڑھی کرے دلے تو گھور بنوا طاقت چاہیے، جلوال بنا تو کوئی طاقت نہیں چاہیے، ایک چاہتی ضرورت۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرا لگ بھگ 10 کروڑ کی یوجنا سینکشن کروایا ہوا ان بے ایمانوں نے رکوانے کا کام، تاکہ ہمارا کام نہیں ہو سکے۔ لوگ ٹھیکہ داری کے لیے پریشان رہتا ہے، ٹینڈر نکلوانے کے باوجود بھی جو لوگ گواہ ہیں علاقے کے دیکھے ہیں پیپر، لوگ ٹھیکیدار تیار نہیں ہوا کہ وہاں آری کرتا ہے۔ وہ کلہاڑی سے سڑک پر جانچ کرنے والوں بتا دو کہ وہ سڑکیں کتنی ٹوٹی پھوٹی ہیں، اگر واقعی ایمانداری سے تم ہتھوڑا اور مڑیا سے تو سنگ مرمر کی سڑکیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس سے گھٹیا سڑکیں پورے بہار میں کہیں نہیں ہے۔ یہ دراصل یہ ہتھوڑا آپ کے سڑکوں پہ نہیں چل رہا تھا، بسیرا نے جو کھودوئی اصل ٹھیکیدار تک دھمکائی کہ تینی دو مال پر بسیرا دے میں سرٹا کھودے دو، یہی وہاں لوگ آئی سمجھے کہ جے بھی ٹھیکیداروں سے وہاں انگلی کرتے روچے، لیکن اللہ کا شکر ہے اختر الایمان آیا تو ایسے لوگوں پر پابندی لگی ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، میری بدقسمتی کا دن ہوگا جس دن کوئی دلال میری تعریف کرے گا، جب تک دلال میری شکایت کرے تو سمجھ لو اختر الایمان حق پر ہے، جس دن دلال میری تعریف کرے سمجھ لو اختر الایمان بگڑ گیا ہے۔ کھاری چوک کے لوگوں گواہی دو، ساون کے مہینے میں جہاں 1 فٹ 1.5 فٹ کیچڑ میں آپ جا رہے تھے، کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں تھا، اس کیچڑ کو میں نے بھروایا ہے۔ اگر کوئی اس احسان کو بھلا ڈالے، احسان تو نہیں ہے، میں نے آپ کا فرض ادا کیا ہے، میرے فرض کو اگر بھلا ڈالے تو میں سمجھتا ہوں یہ حضور پسندی اور دیانتداری کی بات نہیں ہوگی۔ مانندہ کا جس پل کا کام ہم نے کیا ہے، منتری نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ چند چہرے یہاں ہیں جن کو میں نے کان میں کہا تھا کہ دیکھو ایک بڑا کام میں کر رہا ہوں، اللہ سے دعا کرنا۔ ڈاکٹر سلیم صاحب ہے تو یہ سمجھی کا کام کروا پاون ممکن کہ تمہارا زندہ رہتے ہیں انشاءاللہ نہیں پھول ڈاک چاہیں تم اللہ تمہارا حیات بخشے، مگر یہ بات پل مندی کا ہولی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہوا جو منتری نے نہیں سوچا تھا وہ کام آپ کے اس خادم اختر الایمان نے کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ پل صرف ندی پار کرنے کا پل نہیں ہوگا، آپ کی پسماندگی سے ترقی کی جانب پہنچانے والا پل یہ ثابت ہوگا۔ اس علاقے میں تعلیمی میدان میں، اس علاقے کے تجارت کے میدان میں، رشتہ داری کے میدان میں، تہذیب اور ثقافت کے میدان میں، دینی اور سماجی علوم کے میدان میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا ہوگا۔ یہ پل ہماری ترقی کی سارہ بنے گا انشاءاللہ۔ میری اس وقت جو لڑائی ہے وہ کس سے ہے؟ میری لڑائی اس ظالم کانگریس سے ہے جس نے بابری مسجد میں مورتی بٹھائی، اور مورتی بٹھا کر صرف ہماری مسجد نہیں توڑوائی بلکہ ہندو اور مسلمانوں کے محبت کو اسے پارا پارا کر دیا۔ ہم ہندو اور مسلمان مل کے رہنا چاہتے ہیں،
लेकिन कांग्रेस ने उसकी शुरुआत की और बीजेपी ने इसमें आग और बढ़ा दी। नतीजा ये हुआ हमारी मस्जिद टूटी और हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत टूटी। मस्जिद तोड़ने वालों शर्म नहीं आती है? आज भी कहते हो खानदानी कांग्रेसी है तो उसके माने खानदानी तौर पर मस्जिद में मूर्ति बैठाने वाले हो, शर्म होनी चाहिए। मस्जिद में मूर्ति बैठाने वालों शर्म होनी चाहिए। इसी कांग्रेस ने मेरठ, मलियाना और हाशिमपुरा के नौजवानों के सीनों पे हंडन नदी के किनारे गोली चलाई। फिर भी कांग्रेसी कहते हो तो मुसलमानों के सीने पे गोली चलाने वाले से रिश्ता जोड़ने वाले शर्म नहीं आती? कहते हो कि हम कांग्रेसी खानदानी, शर्म होनी चाहिए कहते हुए कि भागलपुर में मुसलमानों की सीने पे इसी कांग्रेस ने गोली चलवाई और रेशम के शहर को जलाकर बर्बाद किया। आप और हम सब ने मिलकर अलीगढ़ की जमीन की लड़ाई लड़ी थी। 2011 के दिसंबर में 30 दिसंबर में एग्रीमेंट साइन हो गया था। 12 और 13 को कांग्रेस की हुकूमत थी। अलीगढ़ के लिए अगर पैसा दिया होता तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस का काम आज शुरू हो गया होता। शर्म नहीं आती? अलीगढ़ का पैसा जिसने रोका उस पार्टी को खानदानी पार्टी कहते हो? मेरे भाइयों, आपको शर्म होनी चाहिए कि आज मेवात और नूह में जहां मुसलमानों के 1200 घर बुलडोजर से तोड़े गए, कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा और 2500 किलोमीटर दूर मणिपुर में आंखों में फिटकरी डालकर रो रहा है राहुल गांधी। मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों के दर्द में तुमको शामिल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को जवाब दो, तुमने वोट दिया था, हमने कुर्बानी देकर मौलाना मरहूम को जिताया था। और जब तलाक के मामले में मेरी शरीयत पर हमला हुआ, इस कांग्रेस पार्टी ने मेरे आलिम को बोलने नहीं दिया। जो शरीयत पर आलिम को बोलने न दे, शर्म होनी चाहिए कि तुम अपने शरीयत के साथ मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो। दूसरी तरफ आप आओ, इस वक्त उसका नाकारा एमपी जो सदन में कभी बात उठा नहीं सका, तरक्की की कोई बात नहीं कर सका, उसके सामने मैंने कहा था उस दिन कि मानंदा पुल मैंने सैंक्शन किया है, कहीं कोई माई का लाभ हो तो बता दे उसमें किसकी क्या हिस्सेदारी है। यह आपकी दुआओं का सदका है कि हमने उस पुल को सैंक्शन करवाया। और क्या मंत्री ने गवाही दी, तेजस्वी यादव ने गवाही दी, याख्तर साहब जिस पुल को आप कह रहे थे उसको मैंने सैंक्शन कर दिया है। उसके बाद भी झुंडी घर में डोला बचेगी नहीं, मोर बाबले कर रही जाएगी। सुन, अरे कारो शादी भर सोहर मोरे गए तो मोली साहब बजे के 4 महीना 10 दिन इद्दत हो जाए ताकि पता लगे कुछ मामला छिड़ेगी। तो शादी साल भर अगर बच्चा है जो 9 महीना तो कहा जगह ठीक है, लेकिन सोहरे तो मोर बाद 3 साल बाद 4 बच्चा है मियाँ तो वहां बारे की ख्याल रखो थोड़ा बता दी मामला फुसकार पूरे ना बोलो हो। मगर अच्छा है नौजवानों, इस वक्त मुझे खुशी इस बात की होती है जब मैं आता हूँ चौक पर तो मुझे कहता है एमएलए साहब लाइन जानी से सड़क बोले काहे नहीं पुरबरा तुम टोकते हो नौजवान, तो मुझे खुशी होती है। ए अल्लाह मेरे बेजवान को तूने जबान अता की है, यही तो मैं चाहता हूँ। कल तक का मेरे आगे बोलता अरे रबा बर्मा बोलो कहा बेटा जो छोटा बोलना चाहिए वो चुप हो जाए। अख्तरुल ईमान कहता है नहीं, गोंगो की जमात का सरदार अख्तरुल ईमान नहीं बनना चाहता। जबान में आवाज करो, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु को महफिल में किसी नौजवान जवान साहबी ने टोका, किसी को हिम्मत नहीं हुई कि रोक दो, कहा कि बोलो, और आपको टोका गया और आपने उस साहबी को बुलाया और उसके पीठ पर हाथ रखा और कहा शाबाश मेरे भाई, ऐसी जमात जहां होगी, ऐसी जमात में जिस जमात में ऐसे अफराद होंगे वो जमात कभी गुमराह नहीं होगी, कभी भटकेगी नहीं। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन हाँ मुहज़्ज़ब अंदाज में टोकना चाहिए। मेरे भाइयों, इस वक्त कांग्रेस के नेता के बारे में मौली साहब की बद्दुआ पड़ गई है। मौली साहब कह रहे कि वो बुलवा ली पार्लियामेंट तो मस्जिद को बुलवा ली गई, और आज अल्लाह का शुक्र है कि उसको कहीं बोलने नहीं दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त बीजेपी 4 सुनाना चाहती है सीट। क्यों मेजोरिटी से सीट क्यों लाना चाहती है? इसलिए कि मुसलमानों को दस्तूर में जो हुकूक मिले हुए हैं उस हुकूक में भी कटौती की जाए। जब तक 2/3 बहुमत नहीं होगी, आइन दस्तूर को तब्दील नहीं किया जा सकता। जो सेकुलर आइन है उसको हिंदुत्व का कानून बनाना चाहता है मोदी, इससे बड़ी होशियारी से बात करनी है। यही वजह है कि उसने फूल को नहीं देकर
आज तीर को वोट टिकट दिया है ताकि आपको ठगा जाए कि नहीं ये तीर छाप है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चंगन के नौजवानों को इतना बेवकूफ मत समझो। मोदी और नीतीश ये जान रहा है कि तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का ही भूल है। नरेंद्र मोदी तुम्हारी साजिश को हम समझते हैं, नीतीश कुमार तुम्हारी साजिश को समझते हैं। मुझको बुलाकर कहा अख्तर साहब पार्टी से तो सब लोग भाग गया, आप अकेले रह के क्या कीजिएगा। मैं अकेले भी हूँ तो इतनी बेची है लोगों को, समझो कितने पेट बैठे हैं। क्या कहा, राजद अच्छा लगे या जदयू मंत्री बन जाइए, काम कराइए, लेकिन अख्तर ईमान के कदम नहीं फिसले। गरीब का बेटा जरूर हूँ, दौलत कम है, लेकिन अल्लाह ने ईमान और इस्तिकामत की जो सलाहियत दी है उस खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। इस बार भी पता नहीं है 2019 में, मैं चूंकि पढ़े लिखे नौजवानों को और आलिमों को देख रहा हूँ, मैं शायद 2019 में चूंकि 18 में मौलाना का इंतकाल हो गया था, अहमद पटेल साहब ने उसको ऑफर करवाया टिकट मुझे कांग्रेस का। मैंने कहा नहीं, कांग्रेस का टिकट मैं नहीं ले सकता। मनोज झा जी जो है उसने कहा अख्तर साहब हम लोग कांग्रेस से टिकट ले लेते हैं, राजद में लड़िए। मैंने कहा नहीं। अवैसी साहब को पूछा गया तो अवैसी साहब ने अख्तर भाई को फैसला करने कीजिए, राजद भी से लड़ेगा तो मैं मदद करूंगा। लेकिन दोस्तों जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, वजारत को लात मार देता अख्तर ईमान। आज अगर कांग्रेस से आता तो सब कोई कहता कि अल्लाह गुलाम की पार्टी जिंदाबाद, लेकिन मैं नहीं आया। क्यों? आपने जो मुझ पर एहसान किया है, मेरी नस्लें आपके एहसान का बदला नहीं चुका सकती। इसलिए मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा काम करके जाऊं कि इंशाअल्लाह आपके नस्लों को फायदा पहुंचे। वो क्या है? वो क्या है? मुल्क सन 1947 में आजाद हो गया, लेकिन देश की इन अंग्रेजों से हमको अब तक आजादी नहीं मिली। आज जादवों ने, आज कोयरी और कुर्मी ने अपनी सियासी जमात बना ली। लाल किला की फसीद पर बैठने वाला मुसलमान, आपकी बिहार में कोई जमात नहीं थी, इसलिए मैंने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ सारी कुर्बानी देकर लाया हूँ ताकि आपकी अपनी जमात खड़ी हो जाए, आपकी अपनी जमात खड़ी जाए। याद रखना नौजवानों, जिस जिस्म में सर नहीं होता वो लाश है, जिस गांव का कोई सरदार नहीं होता वो गांव बर्बाद है, और जिस जमात का कोई लीडर नहीं होता वो जमात कभी कामयाब नहीं हो सकती। बैरिस्टर सऊदी अवैसी आज मजलूमों की जमात का अमीर है, हमने उसके हाथ पे सियासी बैयत की है और आपकी हिमायत का तलबगार बनकर आया हूँ कि आप किसी की गुलामी नहीं करेंगे, अब अपनी पार्टी और अपना वोट ये हम एक माल तैयार करेंगे, ये हमारी कोशिश है। और जहां तक नरेंद्र मोदी का नाम याद आता है, ये जो नटवर लाल आया है 3 महीना पहले क्या बोलता था, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। 3 महीने के अंदर में मुनाफिक से पूछो हृदय परिवर्तन क्या हो गया है। अब मोदी का तलवा चाहता कर, मोदी को लाओ मुझको बचाओ, मोदी को लाओ मुझको बचाओ। अब जनता की फिक्र नहीं है, अब अपनी खुद की फिक्र है। लोग कुछ नौजवान भटक गए हैं और कहते विकास पुरुष, पूछ लो उनसे। अख्तर ईमान ने दर्जनों पुल बनाया, बिजली की योजना सैंक्शन की, मेरे खैरात के टुकड़े पर उसको एमएलए बनने का मौका मिला। जब भाजपा से आया था 2010 में जीत न सका, 2014 में मैंने भाजपा से जदयू को अलग किया, तब वो जीता। 2015 में गठबंधन से जीता, 2020 में फिर भाजपा से आया तो कोचा भवन के लोगों ने किस तरह उसको निकाल बाहर किया है वो आपके सामने में है, और फिर भाजपा आया है। इनकी दलाली फितरत है, इनको सरकार से मिलकर रहना है और सरकार के जरिए से बालू गिट्टी का कमीशन लेना है। इस वजह से वो आज सरकार से सटकर, ये बेजमीरी क्या उसको याद रही कि गोधरा में हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी, बिल्किस के आप उसके बच्चों के सामने में लूटी, दूध पीते बच्चों को माँ के गोद से छीन कर फेंका गया। मुजाहिद और मुजाहिद के लोगों सुन लो कि अगर तुमने आज उस जालिम लोगों का साथ दिया जिन लोगों ने गोधरा में मेरी माँ बहनों की इज्जत टूटी है, तो कल तुम्हारे दरवाजे पर भी जालिम दरवाजा तोड़ेगा, तुम्हारे खानदान के लोगों की चीख भी कोई नहीं सुन पाएगा तुम्हारे खान। और तुम्हें समझ लो, तुम जालिमों का साथ देकर अपने घर का दरवाजा तोड़वा सकते हो, लेकिन किशन की आवाज से मुझे यकीन है कि मेरी बेटियां जहर खाकर मर सकती है, मेरा हर नौजवान गर्दन कटा सकता है, लेकिन गोधरा के जालिमों का कभी साथ नहीं दे सकता। इसलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि इस वक्त मुत्तहिद हो जाइए। पूरे मुल्क में मजलूमों की आवाज का नाम बैरिस्टर सऊदी अवैसी है। आपने उनका साथ दिया, एक नए दौर का आगाज होगा। हमने जो कोशिश की है वो आपके साथ है, वक्त कम है,
इस वक्त एक बात और कह के चला जाऊंगा, अफवाहों का बाजार गर्म किया जाएगा, इड़ा पार्टी जीतो उड़ा पार्टी जीतो। मैंने अक्सर कहा है, हवा में उड़ता है दरख्त का गिरा हुआ पत्ता, कागज का टुकड़ा, और उड़ती है धूल, पत्थर कभी नहीं उड़ता। और एमआईएम के लोगों, आप तो पत्थर नहीं हो, बल्कि पत्थर पर बैठाए हुए पत्थर दीवार हो। दीवार हवाओं से उड़ता नहीं है, हवाओं के रुख को मोड़ देता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप उम्मीद है इन जालिमों के अफवाहों को आप रोकेंगे और एक एक ऊंट पतंग के निशान पर देकर एक नया इनकलाब पैदा करेंगे। अच्छा बोलिए तो बड़ा इनकलाबी आपका वो चेहरा है। इस वक्त हम आवाज लगाना चाहते हैं, आवाज आप सभी तो वोट देना ही चाहते ही हैं, मदद करना चाहते हैं। इस जंग में सर्वगम होकर आए हैं तो मुझे बड़ा खूबसूरत नजारा लगता है, क्यों नहीं इससे फायदा उठाया जाए। पार्टी का नारा है और वो नारा बड़ा बाअसर है और बड़ा सच्चा है। कांग्रेस ने हमको धोखा दिया कि नहीं? मस्जिद तोड़वाई कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो, दिया कि नहीं दिया? आज मुसलमानों को 3,68,000 नौकरी होनी थी और आज 1,73,000 पर 2 लाख नौकरी चली गई। धोखा दिया कि नहीं राजद के लोगों ने? नीतीश ने धोखा दिया कि नहीं दिया? बीजेपी ने गर्दन काटी कि नहीं? तो सबके दिल में है खोट की नहीं? सबने दिया है चोट की नहीं? तो मैं जो बात बोलूं वही बात दोहराना जरा सा। बाजू में कुव्वत हो अलामत हो मुट्ठी, ये कुव्वत अलामत है। पेशानी पर गुस्से की लकीरें हो जालिम से बदला लेने की, और आवाज ऐसी हो कि जालिमों के कान का हरिया फट जाए। अब मोदी साहब कभी कभी हरिया अपने से उर्दू नहीं, लेकिन समझौता तो जरूरी है कि हरिया कान फट। बोलो, सब्र दिया है हमको चोट, सब्र दिया है हमको चोट। तेज हुआ जी मियां, सब दिया है हमको, हम देंगे इन बेलों को, अब देंगे इन बेमानों को। अब अपनी पार्टी अपनाओ, अब अपनी पार्टी अपनाओ। इनकलाब, इनकलाब, पतंग का निशान, अमोर की आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुफ्ती साहब से, मौलवी साहब से, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गर्दन किसने कटाई? क्या कुर्सी के लिए, क्या दौलत के लिए? नहीं, बल्कि उसूल खिलाफत के पहले बैत तब खिलाफत, और इसी को तोड़ा जा रहा था। नवाज रसूल ने उसूल तोड़ने वालों के हाथ पे हाथ नहीं रखा, गर्दन कटवा दी। अख्तरुल ईमान बीजेपी को रोकने के लिए गर्दन कटवा दिया था, और आज एक बीजेपी का तलवा चाट रहा है। कैसा तलवा चाट रहा है? न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। यानी गैरुल्लाह के सामने में नहीं झुकता, जो गैरुल्लाह के सामने में झुकता है वो जाने। किसी ने एक खुदा माना, किसी ने 1000 खुदा माना, कोई कहता है नहीं है खुदा। ये भारत सबका है, जिसको जो चाहे करे, लेकिन जो एक खुदा का परिश्तार होता है वो किसी के सामने में सर नहीं झुकाता। मोबाइल में देखे हो गैरुल्लाह के सामने में सर झुकाते के देखे कि नहीं? फूल चढ़ाते देखे कि नहीं? तो ऐसे लोगों के बारे में हम अपने मुफ्ती और उलमा से कहेंगे, दीन हम लोगों को नहीं, लेकिन अगर इस तरह कोई सरबराह, समाज का जिम्मेदार शरीयत और उसूल को तोड़कर काम करता हो तो उसकी नकीर होनी चाहिए। जाहिर है जो अपनी कुर्सी के लिए वसूल सिकनी करे, जब शरीयत पर पार्लियामेंट पर हमला होगा तो ऐसे मुनाफिक लोग आपका साथ नहीं दे सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सुनो